So, hello everyone, how are you? This is Bhushan Adkar from Excellence Private Tutor. So, we are going to learn today what is heat. So, first of all, I will divide this chapter in two parts. Okay. First of all, I will divide this heat. Okay, in two parts. Okay. That I will divide this into thermal properties of matter and secondly I will divide it into thermodynamics. Okay, so in thermal properties of matter we will learn about what is heat and temperature, means what is the difference between heat and temperature. Then we will learn what is thermometry. Then we will learn about what is thermal expansion. Then we will learn what is calorimetry. In calorimetry, we will learn what is specific heat capacity. Then we will learn many of those definition terms which will be used while solving the numerical, like specific heat capacity. It is a capacity for every material. Okay, it is denoted by small c. Okay, for example, we can say specific heat capacity of water is denoted by C of W, which is 4.2 joules per meter degree Celsius. Okay, this is the value. This is for your example. मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वैल्यू लिखा है. Okay, so we will study many more things in this chapter, and in thermodynamics we will study basics. That means we will study what is zeroth law. Then we will learn first law of thermodynamics. Then we will learn second law. ठीक है? So these are the topics which we will cover in thermal properties of matter and in thermodynamics. There are many more. So here, as you can see, there is no space. So we will cover in further video lecture. Okay? So today, in this video, we will focus on these things. Okay? So write down the heading. Thermal properties of matter. Okay, so write down the heading thermal properties of matter. Okay, now tell me guys, what is difference between heat and temperature? Can anyone say what is the difference between heat and temperature? Okay, how can we define heat? We can say heat is a form of energy. Heat is the form of energy, right? So what is the unit of heat? Unit of heat is nothing but joules. Unit of heat is nothing but joules. अभी आप मुझे बोलोगे सर वर्क का यूनिट भी तो जूल्स है, तो अकॉर्डिंग टू द यूनिट दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए, बट इट इज नॉट द सेम. ये सेम नहीं है, ये गलत है. ओके, बिकॉज हीट मतलब वर्क में क्या बोल सकता हूं, वर्क इज अ मैकेनिकल वे. वर्क इज अ मैकेनिकल वे. और वही मैं हीट देखूं तो हीट इज नथिंग बट नॉन मैकेनिकल वे. इतना समझ में आया क्या? वर्क इज अ मैकेनिकल वे and heat is a non-mechanical way. This is a major difference between heat and work. भले ही उनका यूनिट सेम हो, लेकिन heat it is a non-mechanical way.
and work, it is a mechanical way. Okay, so to understand the heat we should first learn what is the temperature. टेम्परेचर का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है. ओके, सो वी विल लर्न व्हाट इज टेम्परेचर. ओके, हीट को समझने के लिए टेम्परेचर का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो मेरे साथ ही रहना, जाना नहीं इधर. सो व्हाट इज टेम्परेचर. अभी तक क्या डेफिनेशन पता है आपको. व्हाट इज टेम्परेचर अभी तक आपने 9th 10th में पढ़ा रहेगा. व्हाट इज टेम्परेचर आपके घर में. व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट वी कैन से. टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया जाता है बोलो. टेम्परेचर वी कैन डिफाइन टेम्परेचर एज इट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ hotness or we can say coolness of a body. अभी आपको याद आ रहेगा, हाँ रे बाबा ये राइट है. व्हाट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. इट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर. समझे. तो बुखार आता था तभी क्या करते थे, थर्मोमीटर लेते थे, बॉडी भी इधर लगते थे, जीभ भी नीचे रखते थे, इधर भी रखते थे बचपन में हम लोग के टाइम पे. ओके, सो हम लोग को क्या मिलता था वहां से, टेम्परेचर मिलता था 96 97 101 102. ओके, सो वो क्या था, इट इज अ मेजर. मतलब हम लोग वो तरीका था कि जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते थे. ओके, लेकिन अगर तुम टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर. ओके, ये तो ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी वो बच्चा भी बता सकता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर. सो यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो टेम्परेचर की मैं और एक डेफिनेशन बता सकता हूं आपको. इट इज एवरेज, इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी. इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल. मैं क्या बोल रहा हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल. ठीक है, जब मैं बोलता हूं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल तो आप बोलोगे सर आपने तो मैकेनिकल वाला ला लिया इसमें, आपने बोला था ये तो नॉन मैकेनिकल वे. तो लेट मी मतलब आप अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो. ओके, जब कोई भी बॉडी रहती है राइट, आप उसको फोर्स लगाते हो राइट, आप F न्यूटन का फोर्स लगाते हो उस पे, तो ये बॉडी का कुछ सर्टन मास है, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट ऑकर करेगा. ओके, सो आप बोलते हो सर इधर तो वर्क हो गया राइट. तो ये क्या हो गया, बॉडी मूव करेगा सर्टन काइनेटिक वेलोसिटी से मूव करेगा. तो आप बोलोगे सर उसका काइनेटिक एनर्जी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया. लेकिन अगर आप देखोगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स में बोलता हूं तो आप कुछ मत करो, आप खाली मेरे साथ रहो. एक बॉक्स ले लो, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डाल दो यार, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डालो. पुट मेनी मॉलिक्यूल्स इन दैट. अभी है ना, इनको है ना आप हीट करो. ठीक है, आप इनको क्या करो, हीट करो. ठीक है, आप है ना इनको हीट करो तो ये एक मॉलिक्यूल हीट होगा क्या, नहीं, ये जो नीचे है ना वो सब हीट करना चालू कर देंगे. हर एक मॉलिक्यूल हीट करेगा. ठीक है, जब मॉलिक्यूल हीट करेगा तो वो क्या करेगा, अपने आप में वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा. जब वो अपने आप में वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, इट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. वाइब्रेट हो रहा है मॉलिक्यूल्स, जितना आप उसको हीट करोगे उतना वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा. सो आई कैन से टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल. हर एक मॉलिक्यूल पे अपना अपना एनर्जी हीट लगेगा तो अपने हिसाब से वाइब्रेट होगा. आपने पानी को देखा रहेगा, जब पानी बॉईल होता है तो वो नीचे के सरफेस वाला पहला बॉईल होता है. जब भी उबाल आता है तो बॉईल होना स्टार्ट होता है तो नीचे से ऊपर आता है बॉइलिंग, ऊपर से नीचे नहीं जाता है. तो नीचे के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे रहेंगे, ग्राउंड सरफेस पे, वो पहला हीट होना चालू कर देंगे. तो उसी तरह टेम्परेचर इज डिफाइंड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल. ओके, तो अगर आपको ये समझ गया तो यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन. ओके, अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन ड्रॉप डाउन इन कमेंट सेक्शन so that we can easily clear your concept in the coming videos.